جلدی میں اس بچے کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی نے اس بچے سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہو؟ آج عید کا دن ہے، آپ کیوں نہیں کھیل رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے پوچھا بچے دوسرے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، بچے سب نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، ان کے منہ دھلے ہوئے ہیں، بتا تو رو کیوں رہا ہے؟ الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما اليتیم فلا تقہر او کما قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وقال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ وشر بیت فی المسلمین فیہ یتیم یسع الیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین فالحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ میرے محترم سامعین، بحیثیت مسلمان اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بہت سارے ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ ہمارے اوپر ہمارے معاشرے کے حقوق ہیں، ہمارے اوپر ہمارے پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ہمارے اوپر ہمارے ملک، ہمارے شہر کے رہنے والے لوگوں کے حقوق ہیں، اور ہمارے اوپر ایک حق بنتا ہے یتیم کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ میرا حشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ میں جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بن جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے حقوق کا خیال کرو، یتیم کی کفالت کر لو، یتیم کی ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آ جاؤ، اور یتیم کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آ جاؤ، یتیم کی ضرورتوں کا خیال کرو، قیامت کے دن میرے ساتھ رہو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کا سرپرست، میں اور یتیم کا خیال کرنے والا، یتیم کے حقوق کا خیال کرنے والا۔ اللہ کے نبی نے یوں اشارہ فرمایا اپنی انگلیوں سے کہ یوں میرے ساتھ ہوگا۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد والی انگلی اور بیچ والی انگلیوں میں تھوڑے سی فاصلے کے ساتھ اللہ کے نبی نے یوں اشارہ فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے وہ میرے ساتھ یوں رہے گا۔ اب اندازہ کر لیں اللہ کے نبی نے دونوں انگلیوں میں تھوڑا سا فاصلہ رکھا۔ اب اس فاصلے کے باوجود ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی اور چیز نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جو بندہ یتیم کی کفالت کرے گا، جو بندہ یتیم کے حقوق کا خیال کرے گا، جو بندہ یتیم کی ضرورتوں کا خیال کرے گا، جو بندہ یتیم کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے گا،
यतीम के दुनियावी मामलात को अच्छे नमूने अच्छे तरीके से निपटाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो शख्स जन्नत में मेरे साथ यूँ रहेगा, यानी उस शख्स और मेरे दरमियान कोई फासला नहीं होगा, बीच में कोई चीज़ हाइल ही नहीं होगी, वो मेरे साथ रहेगा। अब अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल हो गया। अब वो नेक अमल क्या है? वो नेक अमल यतीम की किफ़ालत है, यतीम के हुकूक का ख्याल करना है, यतीम के जो दुनियावी ज़रूरियात है उनका ख्याल रखना है। अब ये कितनी बड़ी सआदत की बात है, यतीम की किफ़ालत करें, यतीम का ख्याल करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें कुर्ब मिल जाए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह ज़ुहा के अंदर क्या फरमाया? फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, यतीम के साथ सख्ती ना करो, यतीम पर सख्ती ना करो, यतीम के साथ सख्ती से पेश ना आओ, बल्कि उसका इकराम करो, उसके साथ नरमी से पेश आ जाओ। हाँ, उसकी इज्जत करो, उसकी ज़रूरतों का ख्याल करो। ये हमें अल्लाह ने भी सिखाया है, ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम भी है कि यतीम की ज़रूरतों का ख्याल किया करो। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरु बैतिन फिल मुस्लिमीन बैतुन फीहि यतीमुन युहसनु इलैहि। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमानों के घरों में सबसे बेहतर घर वो है कि जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए। क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने? मुसलमानों के घरों में बेहतरीन घर वो है जिस घर में कोई यतीम हो और उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया शर्रु बैतिन फिल मुस्लिमीना बैतुन फीहि यतीमुन युसाउ इलैहि। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुसलमानों का सबसे बदतर घर वो है जिस घर में यतीम हो और उस घर में यतीम के साथ बुरा सलूक किया जाए। आप अंदाज़ा कर लें, अल्लाह के नबी ने उस घर को बेहतरीन घर कहा जिस घर में कोई यतीम हो और वो घर वाले उस यतीम के साथ अच्छे तरीके से पेश आए। हाँ, उसने अखलाक के साथ पेश आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये बेहतरीन घर है। फिर फरमाया बदतरीन घर वो है। बदतरीन से क्या मुराद? बुरे में बुरा घर वो है जिस घर में यतीम हो और उस यतीम के साथ बुरे तरीके से पेश आ जाए लोग, वो बदतरीन घर है। हम जिस घर में यतीम के साथ बदतरीन तरीके से बंदा पेश आ जाए, तो आप अंदाजा कर ले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीम हमें दी है और हम किस तरफ जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने क्या अखलाक हमें सिखाए हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं। एक वाकया मुझे याद आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन ईद का दिन था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की तैयारी करके हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो छोटे थे, जन्नत के शहज़ादे, उन दोनों को कंधों पर बिठाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले ईद पढ़ाने के लिए मस्जिद गमामा। मस्जिद गमामा वो मस्जिद है जो मस्जिद नबी से बाहर थोड़े फासले पर है, जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद नमाज पढ़ाया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादल के लिए जब बादलों के बरसने के लिए अल्लाह के नबी दुआ किया करते थे, वो मस्जिद गमामा। अल्लाह के नबी हसन हुसैन को अपने कंधों पर बिठाए और ईद की तैयारी करके ईदगाह की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं। एक नुक्कड़ पर, एक चौक पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे कि वहां देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बच्चे ईद की खुशी में नए कपड़े पहन के संवर के बच्चे खेल रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। जिस तरह होता है ईद का दिन होता है, बच्चों की खुशी का दिन होता है, मुसलमानों की खुशी का दिन होता है, तो मुसलमानों के बच्चे नए कपड़े पहन के घरों के बाहर नुक्कड़ में चौक पर खेल रहे होते, एक दूसरे से मिलकर खुशी का इजहार कर रहे होते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी चौक पर पहुंचे तो अल्लाह के नबी ने देखा सारे बच्चे खुशी से खेल रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी की नज़र एक बच्चे पर पड़ी, वो खेल नहीं रहा था, वो एक कोने में बैठकर उसके परागंदा बाल थे, मेले कुचेले कपड़े उसको पहने हुए थे, वो बच्चा सिसक सिसक कर रो रहा था।
हाँ, बिलक बिलक कर वो बच्चा रो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों वाले आंखों से अल्लाह के नबी की नजर पड़ी उस बच्चे पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी में उस बच्चे के पास आए। अल्लाह के नबी ने उस बच्चे से पूछा, आप क्यों रो रहे हो? आज ईद का दिन है, आप क्यों नहीं खेल रहे हो? अल्लाह के नबी ने पूछा, बच्चे दूसरे खुशी का इजहार कर रहे हैं, खेल रहे हैं, बच्चे सब ने अच्छे कपड़े पहने, उनके मुंह धुले हुए हैं, बता तू रो क्यों रहा है? तेरा मुंह धुला हुआ क्यों नहीं है? तूने अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहने? वो बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज कर रहा है, ए अल्लाह के रसूल मैं यतीम हूँ, ए अल्लाह के रसूल मैं यतीम हूँ, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं यतीम हूँ। अल्लाह के नबी, मेरा बाप नहीं है दुनिया के अंदर जो मुझे नए कपड़े दिलवा दे। ए मेरे महबूब, मेरे बाप दुनिया में मौजूद नहीं है जो मुझे नए कपड़े दिलवा देता। ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ दुनिया में मौजूद नहीं है जो मेरे चेहरे को धुलवा दे। ए अल्लाह के नबी, मैं यतीम हूँ। खुदा की कसम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन हुसैन को अपने कंधों पर बिठाए हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यतीम की दास्तान को सुना कि मेरा बाप नहीं है जो मुझे नए कपड़े दिलवा दे, मेरी माँ नहीं है दुनिया में जो मुझे नहला दे, मेरे मुंह को धोए, मैं यतीम हूँ। अल्लाह के नबी के आंखों से आंसू बह पड़े। अल्लाह के नबी से अल्लाह के नबी रोने लगे। अल्लाह के नबी ने उस यतीम बच्चे को सीने से लगाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ईदगाह में इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने बच्चे को, उस यतीम को सीने से लगाकर अल्लाह के नबी उस नुक्कड़ से वापस घर की तरफ लौटते हैं और घर में आते हैं और फरमाते, आयशा आयशा तू कहाँ है? आयशा तू रोजाना रोती थी, अल्लाह मुझे बेटा दे दे। आयशा, ये यतीम लेकर आया हूँ, ये अल्लाह की तरफ से तोहफा लेकर आया हूँ। आयशा इस यतीम को नहलाते हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को, उस यतीम को घर में लेकर आए। अल्लाह के नबी ने मुझे हुक्म दिया, आयशा पानी भर कर ले आ। अम्मा आयशा फरमाती है, मैं पानी भर कर लाती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया, आयशा तू पानी भर के यतीम के ऊपर डाल। आज मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, मैं अल्लाह का नबी, आज इस यतीम बच्चे को अपने हाथ से नहलाऊंगा। अम्मा आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पानी डालती जा रही हूँ। अम्मा आयशा फरमाती, मैं पानी डाल रही हूँ। अल्लाह के नबी अपने हाथ मुबारक से, अपने हाथों से उस बच्चे को, बच्चे के जिस्म को मल मल कर साफ कर रहे हैं, नहला रहे हैं। अल्लाह के नबी ने बच्चे को नहलाया तो फरमाया, आयशा तेल ले आ। तेल, अल्लाह के नबी ने तेल मंगवा के उस यतीम बच्चे के सर पे लगाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा फातिमा के पास जा। हाँ, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, आयशा फातिमा के पास जा, जाके उनसे कह दीजिए कि हसन हुसैन के कपड़ों में से जो खूबसूरत जोड़ा हो वो मुझे दे दो, आज मैं यतीम को पहनाऊंगा, आज मैं यतीम को पहनाऊंगा। खुदा की कसम, अल्लाह के नबी ने हसन हुसैन के जोड़ों में से एक खूबसूरत जोड़ा, शहजादों के जोड़ों में से एक खूबसूरत जोड़ा मंगवा कर अल्लाह के नबी ने उस यतीम को खुद पहनाते हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा मुझे सुरमा दे दो, मैं यतीम के आंखों में खुद सुरमा डालूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुरमा मंगवा कर उस यतीम के आंखों में अल्लाह के नबी ने सुरमा डाला है। अल्लाह के नबी ने उस यतीम को खुशबू लगाया है। फिर आप अंदाजा कर ले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ जाने से पहले दूध में भिगोए खजूर नोश फरमा कर फिर ईदगाह की तरफ जाते थे। फरमाया, आयशा वो खजूर तो मुझे दे दे जो मैंने दूध में भिगोकर हमने रखे हैं। अल्लाह के नबी ने दूध में भिगोए खजूर अपने हाथों से यतीम के मुंह में डालते हैं, यतीम को खिलाते हैं। मेरे भाइयों, हमारे नबी ने हमें ये अखलाक सिखाए हैं, अल्लाह के नबी ने हमें ये सबक पढ़ाया है। आज हमने अल्लाह के नबी के पढ़ाए सबक को भुला चुके हैं, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ चुके हैं। अम्मा आयशा फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद उस यतीम से कहता है, अल्लाह के नबी उस यतीम से कहते हैं, उसका नाम बिशर था। क्या नाम था? उसका नाम बिशर था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, या बिशर अमा तर्जा अन अकूना अबूका व उम्मुका आयशा, अमा तर्जा अन अकूना अबूका व उम्मुका आयशा। ए बिशर, क्या तू राजी नहीं है
اے بشر کیا تو خوش نہیں ہے کہ آج کے بعد محمد تیرا ابا ہو، عائشہ تیری اماں ہو، آج کے بعد محمد الرسول اللہ تیرے ابا ہو اور عائشہ تیری اماں ہو۔ آپ اندازہ کر لو اللہ کے نبی نے کتنی محبت کی ہے یتیم سے، اللہ کے نبی نے یتیم کا کتنا خیال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یتیم سے پوچھتے ہیں، بشر سے پوچھتے ہیں، اے بشر تو بتا، تو گزشتہ عید پہ اپنے ابا کے ساتھ عیدگاہ پہ گیا تھا، بتا تیرے ابا نے تجھے اپنے کندھوں پر بٹھا کے عیدگاہ لے گیا یا تیری انگلی میں پکڑ کر پیدل تجھے چلایا؟ وہ بشر کہتا ہے یتیم ہے، چھوٹا بچہ ہے، رو کر کہتا ہے اللہ کے رسول میرے ابا نے مجھے اپنے کندھوں پر بٹھا کے عیدگاہ کی طرف لے گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کندھوں پر حسن حسین کو بٹھائے ہوئے تھے، عید کا دن ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے جنت کے شہزادوں، اے حسن حسین، اے علی کے بیٹو، اے فاطمہ کے بیٹو، آج اس کندھوں پر تمہارا حق نہیں، آج اس کندھوں پر یتیم کا حق ہے۔ آج اس کندھوں پر کس کا حق ہے؟ یتیم کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بشر کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے ہیں، حسن حسین کو پیدل چلاتے ہیں، اس نکڑ پر پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس نکڑ پر، اس چوک پر پہنچے ہیں جہاں چند منٹ پہلے، چند گھڑی پہلے یہ بچہ رو رہا تھا، دوسرے بچے خوشی سے کھیل رہے تھے، جن کے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ خوشی سے کھیل رہے تھے، یہ بچہ رو رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے بشر کو کندھوں سے اٹھا کر کہتے ہیں اے بشر جا کے ان بچوں کے ساتھ کھیل، میں محمد نے تجھے روتا دیکھا تھا، آج میں محمد تجھے ہنستا بھی دیکھنا چاہتا ہوں، آج میں محمد تجھے مسکراتے دیکھتا ہوں۔ اب اس بچے کو نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، منہ دھلا ہوا ہے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، خوشبو لگا دیا اللہ کے نبی نے، اپنے خوشبو سے خوشبو لگایا اللہ کے نبی نے اس یتیم پر۔ وہ یتیم بچہ اللہ کے نبی کے کندھوں سے اتر کر ان بچوں میں گیا، خوشی کرنے لگا، جھومنے لگا، بچے سارے جمع ہو گئے اور کہنے لگے تو تو وہی بچہ ہے جو چند گھڑی پہلے تیرے پراگندہ بال تھے، تیرا جسم دھلا ہوا نہیں تھا، تیرے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بتا تیرا منہ کس نے دھویا، تجھے نئے کپڑے کس نے دی؟ وہ یتیم رو رو کر کہتا ہے اب مجھے یتیم نہ کہو، آج مجھے مبارکباد دے دو، آج کے بعد میرے ابا محمد الرسول اللہ ہیں، آج کے بعد عائشہ میری اماں ہے، آج کے بعد عائشہ میری اماں ہے۔ میرے بھائیوں یہ درس ہمیں کس نے دیا؟ یہ سبق مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی نے پڑھایا کہ یتیم کا خیال کرو، یتیم کے حقوق کا خیال کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس کے یتیم کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ جائیں، اس یتیم کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آ جائیں، اس یتیم کے ضرورتوں کا خیال کریں۔ جس گھر میں یتیم کا خیال کیا جائے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مسلمانوں کا بہترین گھر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمانوں کا وہ بدترین گھر ہے جس گھر میں کوئی یتیم ہو اس کو خیال نہ کیا جائے، اس یتیم کا اکرام نہ کیا جائے، مسلمانوں کا بدترین گھر وہ گھر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے اس یتیم کو سرما لگایا ہے، اللہ کے نبی نے کندھوں پر بٹھایا ہے، اللہ کے نبی عیدگاہ کی طرف آ رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا اے دنیا والو اگر یتیم کی عید نہیں ہوئی تو محمد کی بھی عید نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ اگر یتیم کی عید نہیں ہوئی تو محمد کی بھی عید نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ یاد رکھ لو مسلمانوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یتیم کی عید نہیں ہوئی تو محمد کی بھی عید نہیں ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سامنے اپنے بچوں کے ساتھ پیار سے پیش نہ آؤ۔ اے دنیا والوں سن لو، اے امیروں سن لو، اے سرمایہ دار مسلمانوں سن لو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یتیم کے سامنے اپنے بچوں کے ساتھ محبت سے پیش نہ آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس یتیم کو اپنا ابا یاد نہ آ جائے اور اس کے دل سے آہ نہ نکل جائے اور اس آہ کی وجہ سے کہیں اللہ پاک آپ لوگوں کے بچوں کو بھی یتیم نہ کرے۔ تو میرے بھائیوں آج رمضان کا مہینہ ہے
اور सखावत का महीना है, गमखारी का महीना है। हमारे मुआशरे के अंदर कितने यतीम होंगे, हमारे मोहल्ले में कितने यतीम होंगे, हमारे मुआशरे में, हमारे मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले में हमारे पास कितने यतीम होंगे। तो हम यतीमों का ख्याल करें। जिस तरह ईद की तैयारी करेंगे हम मुसलमान, ईद आने वाला है, ईद की तैयारी करेंगे, जिस तरह अपने बच्चों के लिए नए जोड़े लेते हैं, नए कपड़े सिलवाते हैं, तो मेरे भाइयों आपके रिश्तेदारों में कोई यतीम होगा, आपके मोहल्ले में कोई यतीम होगा। जिस तरह अपने बच्चों के लिए आप नए जोड़े सिलवाते हैं, एक जोड़ा किसी यतीम के लिए भी सिलवा दें। अपने बच्चों के लिए आप कोई चप्पल नहीं लेते हैं, आप नई नई चप्पलें लेते हैं, तो मेरे भाइयों कोई एक चप्पलों का नया जोड़ा किसी यतीम को पहना दो, उसका दिल खुश हो गया, खुदा की कसम रब भी खुश हो जाएगा, मोहम्मद भी खुश हो जाएगा। अगर मोहम्मद खुश हो जाए, खुदा की कसम दुनिया की सारी दुनिया की मुसीबतें खत्म। खुदा की कसम नबी खुश हो जाए तो जन्नत की दरवाजे खुल जाएंगे। यतीम की कफालत से अगर नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, खुदा की कसम अल्लाह पाक जन्नत के 8 दरवाजों हमारे लिए खोल देंगे। तो मेरे भाइयों अल्लाह पाक हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने वाला बना दे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तय्यबा पर अमल करने वाला बना दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।